বুধবার পাক সেনা প্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় অনুযায়ী বেলা 1টায় দুপুরের খাওয়া দাওয়া একসঙ্গে সেরে ক্যাবিনেট রুমে বৈঠক দুজনে। কোনো সংবাদ মাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই সেই বৈঠকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পাক সেনা প্রধান আসিম মুনিরের বৈঠকের আগে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রায় 35 মিনিট ধরে ফোনে কথা হয়েছে দুই দেশের রাষ্ট্রনেতা। পাকিস্তানের সঙ্গে বৈঠকের আগে নম্বর এই ফোন কল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। With India and Pakistan, I was able to stop that, and those are nuclear powers, and that was getting close to being out of hand. And I spoke to some very talented people on both sides, very good people on both sides. They said, we're not going to deal with you on trade if you're going to go shooting each other. And the leader of India, who's a great guy, was here a few weeks ago. We had some great talks. We're doing a trade deal. And Pakistan, likewise, they have very strong leadership. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'll never get credit for anything. G7 বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাতের কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে তড়িঘড়ি ওয়াশিংটনে ফিরে যান ট্রাম্প। সেজন্যই ফোনে কথা হয়েছে দুই রাষ্ট্রনেতা। 35 মিনিট কথা হয়েছে দুপক্ষে, জানালেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্র। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। G7 শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন কানাডায় ছিলেন তখন ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা হয় তার। অপারেশন সিন্দুর নিয়ে বিস্তারিত জানতে চান ট্রাম্প। তখনই প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট করে দেন যে সন্ত্রাসবাদকে আর শুধুমাত্র ছায়াযুদ্ধ হিসেবে দেখছে না ভারত। 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারত পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে গুড়িয়ে দিয়েছে। এই বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার কোনো প্রয়োজন নেই বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মোদী। তার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ট্রাম্পকে স্পষ্ট জানিয়েছেন ভারতের অপারেশন সিন্দুর এখনো শেষ হয়নি। পাকিস্তানের গুলির জবাব গোলায় দিয়েছে ভারত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। ট্রাম্প মোদীর এই ফোনালাপকে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন বিদেশ মন্ত্রকের সচিব বিক্রম মিশ্র। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने
राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पहलगाঁওতে জঙ্গি হামলার পর অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তানে ঢুকে পর 9টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান। ঠিক তখন দুই দেশকে যুদ্ধবিরতির জন্য রাজি করিয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ বিষয়ে দেশের মধ্যেই বিরোধী দলগুলির প্রশ্নের মুখেও করতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও ট্রাম্পের মধ্যস্থতার কথা বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে, একের পর এক হামলায় পাক সেনার কোমর ভেঙে যাওয়ার পর খোদ পাকিস্তানের ডিজিএমও ফোন করে যুদ্ধবিরতির আবেদন করেছিলেন বলে জানিয়েছিল ভারত। এই নিয়েও জোরালো বিবৃতি দিলেন বিদেশ সচিব। ট্রাম্প ও মোদি একে অপরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। 35 মিনিটের ফোনালাপে রুশ, ইউক্রেন, ইসরায়েল, ইরান ইস্যুতেও কথা হয়েছে নরেন্দ্র মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের। শান্তি ফেরানোর জন্য আলোচনার প্রয়োজন বলেও সম্মতি জানিয়েছে দুই রাষ্ট্রনেতা।